KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science along with previous year questions and expected questions. So इन सभी lectures की PDFs आपको कहाँ मिलेंगी, study notes कहाँ मिलेंगे हमारे ऐप पे which is KP class exam prep app and if you are an iOS user तो class plus app के नाम से आपको मिलेगा. So what you can do, you can log in, put in your credentials and free material section पे जाएंगे. In the document section आप अपना subject select कर सकते हैं and you will be getting study notes of all these lectures absolutely free of cost. और अगर आपने अभी तक हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको हमारी सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर केपी क्लास कम्युनिटी फॉर डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड लेटेस्ट न्यूज. So in this series we have come to day 16th and last lecture में हमने peasant, जमींदार and state का part 1 discuss किया था till the role of women. So in this lecture we are going to complete the part 2 and before that these are our Udan batches. We have launched Udan batches for you guys so that you can boost your CUET preparation. So both के बाद आप जब CUET के लिए prepare करेंगे you can become part of our Udan batches. So these courses are available for humanities, science and commerce in just 4999. So within 4999 you will be completing all your domains including GT and language tests. And अगर आप सिर्फ GT target कर रहे हैं GT and language, so वो within 3000 you will be getting for a Sarthi batch. And these are the books: all economics, history, socio, GT, language, accountancy, business studies, सबकी hard copies and soft copies will be available to you and these books have more than 1200 MCQs. So before giving the examination you will be revising minimum 1200 MCQs. अब 1200 MCQs revise करके जाएंगे. So let's get started. Let's begin with the lecture. So अब हम बात करेंगे part 2 में life of the forest dwellers. तो उनका क्या कंडीशन था, हाउ दे यूज्ड टू लिव अंडर द मुगल पीरियड. सो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स एंड सोर्सेस 40% ऑफ द लैंड वाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट. दिस स्क्रब लैंड, खरबंदी एंड डेंस फॉरेस्ट, जंगल बोला गया था. एंड वहां पे रहने वाले लोगों के लिए टर्म जंगली यूज हुआ था. सो जंगली डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन whose livelihood came from the gathering of forest produce, hunting and shifting agriculture. सो जो जंगल्स में रह रहे हैं एंड उनका इंटायर लाइवलीहुड, उनका सर्वाइवल, इट डिपेंड्स ऑन जंगल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसलिए उनको जंगलीज बोला गया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल भील्स यूज्ड टू कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्प्रिंग सीजन में, फिश वो समर सीजन में कलेक्ट करते थे एंड कल्टिवेशन करते थे मॉनसून में, हंट एनिमल्स इन द ऑटम एंड विंटर. तो ये क्या था, एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर था और ये सारा ही सारा प्रोड्यूस कहाँ करते थे, ये फॉरेस्ट में ही इनकी हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी. नेक्स्ट बाबर ने क्या बोला कि कंसिडर द फॉरेस्ट as subversive place or refugee, the mabas for the troublemakers to hide and avoid paying taxes. उन्होंने क्या बोला, it's a place where the people can hide. क्यों? क्योंकि उनको टैक्स नहीं पे करना. So Babur says that jungles provided a good defense behind which the people of the Paragana become stubbornly rebellious and pay no taxes. तो यहाँ के रहने वाले लोग रिबेल हो सकते हैं, रिबेलियस हो सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं और टैक्सेस बिल्कुल पे नहीं कर सकते. इस वजह से ये फॉरेस्ट में चले गए. तो ये बाबर ने बोला था. 2 मार्कर क्वेश्चन. देन इंट्रूजन इनटू द फॉरेस्ट. मुगल स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी. So the Peshkash lived from the forest people including the supply of the elephants. So मुगल्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, हंट सिंबलाइज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स, रिच एंड पुअर. रूरल्स की बात करें, वेंट फॉर रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशंस एंड ट्रैवल अक्रॉस द एक्सटेंसिव टेरिटरी ऑफ द एम्पायर टू अटेंड द प्रॉब्लम्स. सो क्या था इंट्रूजन, फॉरेस्ट में क्यों जाना पड़ा, लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए, एलिफेंट्स के लिए एंड हंटिंग के लिए. देन ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं इसको हमने क्या करना शुरू करा, एक्सचेंज करना शुरू करा. सो इट वाज एन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट इम्पिंग्ड ऑन द लाइव्स ऑफ दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट.
So forests produce like honey, bee bags, gumlag, elephants. ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे and they became major items overseas export from India in the 17th century. So exchange of commodities took place via the barter system. तो उस टाइम पे मनी तो था नहीं. What they used to do? They used to do the barter system. Example, the Luhanis in the Punjab engaged with the overland trade with the countries like Afghanistan along with the trade in the Punjab region. अब बात करेंगे social changes in the life of the forest dwellers. कुछ changes आए इनकी lives में, आइए देखते हैं. Social factors also brought changes in the lives of the forest dwellers. Like जो headman था, जो मंडल था, and ट्राइब्स थे, जो चीफेंस थे, सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें चेंजेस देखने को मिले. चीफेंस ऑफ द ट्राइब्स वो जमींदार बन गए एंड राजा भी बन गए. तो इनको क्या नाम दिया? ट्राइबल किंग्स. ये क्या रिक्रूट करते थे? लोगों को फ्रॉम द लीनिएज ग्रुप्स एंड डिमांडेड दैट देयर फ्रेटर्निटी इन ऑर्डर टू बिल्ड अप देयर आर्मी. तो लोगों को रिक्रूट करना शुरू करा ताकि इन ट्राइबल किंग्स की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट हो जाए. Example, tribes in the Sindh region had armies comprising 6,000 cavalry, which are the horsemen, and infantry 7,000 infantry. उसे कहते हैं हम elephants. असम की बात करें, Ahom kingdom kings had their pecks and people were obliged to render military service. So they were very happy. बहुत खुशी अपनी services वो render करना चाहते थे. So the capture of wild elephants was made the monopoly of the Ahom kingdoms as well. अब ये बात करते हैं, ये जो ट्राइबल सिस्टम था कहीं ना कहीं मोनार्कियल सिस्टम, ये रूल करने वाला सिस्टम बाय सिंगल पर्सन कैसे बना. सो ये ट्रांजिशन हमें देखने को मिला. एन अकबरी बताता है कि देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल किंगडम्स इन द नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में हमें काफी ज्यादा ट्राइबल किंगडम्स देखने को मिले एंड वॉर यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन था बिटवीन द ट्राइबल किंगडम्स इन द नॉर्थ ईस्ट. लाइक कोच किंग फॉट द सबजुगेटेड नंबर ऑफ नेबरिंग ट्राइब्स in a long sequence of wars through the 16th and the 17th century. तो wars देखने को मिला. Straight away question आता है the role of zamindars as a aid marker. So possible questions क्या हैं? दो possible questions हैं इस chapter में से, which is role of the women and role of the zamindars. So zamindars were landed proprietors, also enjoyed certain social and economic privileges. Caste was the one factor for their elevated status. So जमींदार के बाद कुछ certain rights थे and caste की वजह से उनको एक higher status and authority enjoy करने को मिली गई. कुछ ये services करते थे, उन services के लिए जो term use हुआ है उसको कहते हैं खिदमत. So जमींदार held extensive personal lands. उन lands का क्या नाम था? मिल्कियत, which means property. तो ऐसे मिल्कियत lands they were cultivated. क्यों? For the private use of the जमींदार and उन लेबर्स को वो हायर करते थे. तो ये जमींदार की मर्जी थी कि उनको यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, सेल करना है या डोनेट करना है. सिमिलरली दे ऑल्सो एंजॉय राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट. सो जितना भी रेवेन्यू था स्टेट के बिहाफ पे हु यूज्ड टू कलेक्ट? जमींदार. तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरमीडियरी की फॉर्म में राइज होते हैं. दे हैड कंट्रोल ओवर द मिलिट्री रिसोर्सेज, दे हैड फोर्ट्रेसेस जिसे किलास बोला गया, as well as armed contingent comprising units of cavalry, artillery and infantry. अब अबू फजल के अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? मोस्ट ऑफ द जमींदार कहां से थे? अपर कास्ट. कौन सी? ब्राह्मण या फिर राजपूत थे. जिसे लार्ज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जमींदार फ्रॉम सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कास्ट बोला गया. इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लिबरल स्प्रिंकिंग ऑफ द मुस्लिम जमींदार एज वेल. सो मेजॉरिटी हमें जमींदार इन्हीं रिलीजन से देखने को मिले थे एंड इन्हीं कास्ट से देखने को मिले. Then come dispossession of the weaker people by powerful military chieftains was quite often a way expanding a zamindari. However, unlikely that state would have allowed such a show of aggression by zamindars unless he had been confirmed by the imperial order. So उनको क्या करा गया? जमींदार्स ने वीकर पीपल को सप्रेस करना शुरू कर दिया एंड स्टेट के हाथ में जब ये मुद्दा आया तो क्या करा? ये डिसीजन स्टेट के हाथ पे था. And they also spearheaded the colonialization of agricultural land, helped in settling the cultivators by providing them with the means of cultivation, including the cash loans. तो उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प भी करी peasants की. Buying and selling of जमींदारीज accelerated the process of monetization in the countryside. तो कंट्री में क्या हो रहा था? Buying and selling, basically economic income generate हो रही थी.
In addition, they used to sell the produce of their milkiyat land. Again, revenue sources. There is an evidence to show that zamindars often established the markets to which peasants also came to sell their produce. Although there can be a little doubt that zamindars were an exploitative class and their relationship with the peasantry was reciprocal and one of the paternalism. So कहीं ना कहीं exploitative class कम माना गया है and it is more of a good class. So land revenue system की बात करें, मुगल रूल में what was the land revenue system? So revenue from the land वो मेन इकोनॉमिक स्टेट था. कैसे शासन चला आपके रेवेन्यू से जो लैंड से आ रहा है, एंड बहुत जरूरी था टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू इंश्योर द कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड टू फिक्स एंड कलेक्ट द रेवेन्यू अक्रॉस द एम्पायर. दिस सिस्टम इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ दीवान. दीवान क्या करता था? सुपरवाइजिंग द फिस्कल, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द एम्पायर. And some revenue officials and record keepers penetrated the agricultural domain and maintained a decisive agent in shaping the agrarian relation. Then the land revenue arrangements consisted of two stages. पहला क्या था? Assessment and actual collection, and the jam was the amount assessed and the hasil the amount collected. So अकबर की जो डिक्री थी, ordered अमीर गुजार एंड द रेवेन्यू कलेक्टर, वो क्या करेगा? कल्टिवेटर्स को पे करेगा इन कैश, एंड अगर ऑप्शन है तो काइंड में भी ओपन, वो पॉलिसी ओपन थी कि अगर कैश चाहिए तो कैश, अदर देन कैश जैसे लैंड हो गया तो उसमें भी पेमेंट हो सकती है. While fixing the revenue, attempt of the state was to maximize its claim, and both cultivated and cultivable lands were measured. तो ये measures भी होते थे कितना पोर्शन हम कल्टिवेट कर सकते हैं और कितना नहीं. So efforts to measure lands continued under the subsequent emperors. Aurangzeb instructed his revenue official to prepare annual records of the number of the cultivators in each village. But सारे ही एरियाज कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मेजर नहीं हुए. अब लास्ट हम बात करेंगे एन ए अकबरी की. तो क्या जरूरी है, ऐसा क्या सोर्स हमें पता चलता है अकबर के रेन का, एंड इसकी लिमिटेशंस क्या थी? स्ट्रेट अवे अगेन थर्ड 8 मार्कर फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड इस टॉपिक से काफी ज्यादा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सो एन ए अकबरी क्या था? इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? एक हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन अंडरटेकन बाय अबुल फजल एट द ऑर्डर ऑफ एम्परर. तो ये क्या थी? इट वाज अ कोर्ट क्रॉनिकल. अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस बुक में बताया गया था. कंप्लीटेड इन 1598 एमसीक्यू एंड 5 रिविजन्स के बाद उसको कंप्लीट किया गया. तो एन वाज द पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर, इसलिए इसका नाम एन ए अकबरी रखा गया. So this history is known as the Akbarnama, comprised of 3 books. The first provided a historical narrative. The Ane Akbari, the third book, was organized a compendium of imperial regulation and the gazetteer of the empire. So Akbarnama comprised of 3 books, and तीसरे बुक का नाम क्या था? Ane Akbari, जिसके बारे में it was a compendium. It's a collection of all the regulations and gazetteer. उस जमाने में जो स्टेट का जितना भी रेगुलेशन था वो कहाँ लिखा गया? आईने अकबरी में. It gives the detailed account of the organization of the court, administration, army, revenue, पैसे कहाँ से आते थे, physical layout of the provinces, अकबर के empires कहाँ थे, literacy कैसी थी, culture कैसा था, religion कैसा था, what and quantitative information. So about each and everything, social, economic, cultural, सारी information हमें आईने अकबरी से मिलती. So the Ain made up of 5 books which are known as the Daftars. पहली 3 बुक हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है. पहली बुक का नाम है मंजिल आबादी, कंसर्न अबाउट द इंपीरियल हाउसहोल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, एमसीक्यू. सेकंड बुक है सिपहा आबादी, कवर्स द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीक्यू. This book also includes the notices and the short biographical sketches of the imperial officials, like जो मनसबदार थे, learned men, poets, basically जितना भी military and civil administration होता था उन लोगों के कहीं ना कहीं एक chapter के through उन लोगों की biographies भी mention थी. The third book is Mulk Abadi, deals with the fiscal side of the empire and provide information on the revenue rates. So basically जितना भी monetary है
पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे बने, वो थर्ड बुक में है। फोर्थ एंड फिफ्थ बुक्स को मोस्टली लिटरेचर, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में लिखा गया था एंड अकबर की कुछ ऑस्पिशियस सेइंग के बारे में भी लिखा गया था। सो ये आप जब इस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे तो दीज 5 बुक्स के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि विच बुक रिलेट्स टू विच टॉपिक। बात करेंगे लिमिटेशंस, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स जो आईने अकबरी में हमने फेस करी, देखने को मिली। So AIN was officially sponsored to record the detailed information to facilitate Emperor Akbar. It was much more than a reproduction of official papers. So क्या बोला गया था? Manuscript was revised 5 times by the author himself, suggests a high degree of caution on the part of Abu Fazl and a search of authenticity. तो ये क्या था, एक स्पॉन्सर से बोला गया था कि अपनी इंफॉर्मेशन अकबर ने खुद बोला गया कि मेरे बारे में यही इंफॉर्मेशन मेंशन करना है, इस वजह से उसको 5 टाइम्स रिवाइज करना पड़ा। दूसरा, ओरल टेस्टिमनीज वर क्रॉस चेक, काफी ज्यादा वेरिफिकेशंस देखने को मिली अबाउट द फैक्ट्स एंड द फिगर्स and all numeric data were also reproduced in the words to minimize the chances of transcriptional errors. Third, historians who carefully studied and point out that it is not without its problems. Numerous errors in totaling have been detected. तो टोटल करते टाइम हमें एरर्स देखने को मिले हैं भाई, जितने भी क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। इवन डेटा वर नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल प्रोविंसेस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है कि जितने भी प्रोविंसेस थी, अकबर की स्टेट्स थी, सबका डेटा हमें नहीं देखने को मिला, तो क्या हुआ, मिसमैच देखने को मिला है। फिर फिजिकल डेटा फ्रॉम द सूबास इज रिमार्केबल फॉर द रिचनेस एंड सम इक्वली वाइटल पैरामीटर्स सच एज प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ये उस टाइम पे एज इट इज डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सो दीज लिमिटेशन नॉट विथ स्टैंडिंग द एंड रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट। ये आपका आंसर में क्या बन जाता है, कंक्लूजन बन जाता है, ठीक है। स्टिल इट गिव्स अस गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। So this was all about this chapter. I hope you like this video. Again, I'm reminding you, you can become part of our Udan batches for your CVT preparation and our Sathi batch to boost your CVT preparation. And हमारे courses में आप lectures में जुड़े रहिए so that you can complete your entire board preparation through these lectures. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.